कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी के हत्यारों के रिहाई के आदेश का विरोध किया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि हत्यारों की रिहाई का फैसला पार्टी को नामंजूर है और यह फैसला पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल अदालत की ओर से यह आदेश दिया गया था कि राजीव गांधी के जो हत्यारे जेल में बंद हैं, 6 हत्यारे, उनकी रिहाई का आदेश दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज जताया है। साल 1991 में राजीव गांधी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पेरम्बदूर में बम धमाके से आत्मघाती हमला करके उनकी जान ले ली गई थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 हत्यारे जेल में हैं, उनकी रिहाई का आदेश दिया और कांग्रेस पार्टी ने इस रिहाई का विरोध किया है। इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एलटीटी, जो कि एक आतंकी संगठन था, उससे जुड़े हुए लोगों ने इस धमाके को अंजाम दिया था। कांग्रेस की ओर से किस तरह से इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है, आइए आपको सुनाते हैं। A fatal attack on any PM, former or sitting, is an attack on the very sovereignty and integrity of India and cannot be dealt with on normal administrative considerations. And therefore, we endorse and support the very clear stand of the central government, which did not agree with the state government on this issue. If the petitioners before the court, that's the 5th point I'm making, were seeking relief, so the petitioners before the Supreme Court were seeking relief, the principal respondent, the state, was supporting the petitioners. Then it was incumbent upon the Honorable Court to not only call upon the central government as they did, but to give a lot of weight to the fact that the central government did not agree with the state government. The degree of weight, the dispositive weight given to the state government is disproportionate to the weight given to the central government's view. And we believe that not sufficient weight was given so that the central government's clear disagreement with the state government could be fed into the calculus appropriately. 6th, the somewhat strange and possibly unintended effect of this order, strange and possibly unintended, hopefully unintended, would be that any recommendation by any state government would be virtually binding. And it would be taken as virtually dispositive by the Supreme Court, which cannot be correct. And most important, lastly, not the least, but very important, this is underlined by the fact that the court itself was cognizant of this because they used their special unique powers under Article 142, which is indicative of the absence of their power to do a specific thing. Because 142 is used only because you don't have the power and you want to do some overall special justice, which only the Supreme Court has the power. The Indian National Congress respectfully believes that this is a wholly inapposite invocation of the drastic, ad hoc and unique power of the Apex Court in a case involving convicted assassins of a former head of the Indian government, which, as I have explained earlier, strikes at the very root of Indian sovereignty. Without going into specifics, I only want to say that we intend to take all appropriate remedies available to us, be it review or any other form of legal redress, because we believe that we owe it to the people of this country and to the Supreme Court also on the legacy which it has built itself. कर रहा हूँ अभी तो खत्म, सांस भी नहीं लिया इंग्लिश खत्म करने के बाद. No, please, you come late and you want to ask a question before Hindi. That's very unfair, Sunil. Very unfair. No. ना दोस्तों, मित्रों, ये ध्यान से सुने सभी संस्थान कि व्यर्थ में नहीं जाने देगा ये देश राजीव गांधी का बलिदान. इसलिए हमारा आदरपूर्वक निवेदन और आह्वान है न्यायालय को कि नहीं दें गुनहगारों को जीवन दान. देखिए, न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, प्रतीत भी होना चाहिए. आज उच्चतम न्यायालय ने 6 ऐसे व्यक्ति जो दोषी या अभियुक्त नहीं हैं लेकिन कन्विक्टेड हैं, एक ऐसे फौजदारी कारनामे के लिए जो एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का कारनामा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि राजनीतिक रंग कुछ भी हो, एक पदासीन प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री पे घातक हमला और मृत्यु और हत्या भारत की अक्षुण्णता, संप्रभुता, भारत के अस्तित्व को अटैक करता है, उस पर आक्रमण करता है। इसमें कोई राजनीति का रंग नहीं होता। और ऐसे एक जो अपराध है, जघन्य अपराध, उसके लिए आप आम तौर वाले प्रशासनिक कारणों से 6 लोगों को और एक व्यक्ति को पहले मई 2022 में रिहा नहीं कर सकते। ये कांग्रेस का आदरपूर्वक स्टैंड है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विषय में। देखिए, आपको पता है, सबको, पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि आप कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते कि न्यायपालिका के एक सौराद्र से ऐसे घिनौने, ऐसे जघन्य अपराध के लोग जो अभियुक्त नहीं है, कन्विक्ट हैं, जिन्होंने सोच समझकर प्लानिंग करके एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की, उसको न्यायपालिका किसी रूप से फायदा दे रही हो। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने खुद ने बार बार कहा है कि सिर्फ अगर आपने कुछ समय कारागार के पीछे बिताया है, वो कारण नहीं हो सकता रिहाई का। कई निर्णय हैं, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नारायण एक निर्णय है। हर केस को उसके संदर्भ में देखना पड़ता है। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि त्रिपाठी और अरविंद सिंह हमारे साथ हैं। अरविंद, सबसे पहले जानना चाहेंगे इसका कानूनी पक्ष क्या है फैसले का? क्या जो मई में जो फैसला आया था अदालत की तरफ से 7वें आरोप, माफ कीजिएगा, इस मामले में जो सजा याफ्ता कैदी हैं उनको लेकर के इसी वजह से वही फैसला बाकियों पर लागू हुआ है, ये कानूनी मामला है? देखिए चंदन, इस मामले का कानूनी पक्ष ये है कि पेरारी वलन वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अगर राज्य सरकार की तरफ से सिफारिश गवर्नर को भेजी जाती है तो गवर्नर उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। यहाँ पर राज्य सरकार ने सभी दोषियों की रिहाई की सिफारिश गवर्नर को भेजी थी, लेकिन गवर्नर ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन वाले मामले में आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया था। जी। आज सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पेरारी वलन वाले मामले में जो आदेश था वो इन दोषियों पर भी लागू होता है। जेल में 30 साल से अधिक वक्त गुजार चुके हैं, जेल में इनका व्यवहार अच्छा रहा है और इस बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों को भी पेरारी वलन के बराबर मानते हुए रिहाई का आदेश दिया है। एक महत्वपूर्ण बात यह चंदन की 14 साल से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद में उम्र कैद के मामलों में राज्य सरकार को अख्तियार होता है कि वो रिहाई के बाबत सिफारिश राज्यपाल को भेज सकते हैं। ठीक है जी। रवि, इस मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से जो राजनीतिक अभी जो बयान अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दिया गया है, अभिषेक मनु सिंघवी खुद भी जाने माने वकील हैं और उनकी ओर से इसमें तमाम पहलू गिनाए गए हैं और कहा है कि इस तरह की रिहाई गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी मैंने कहा कि चाहे तो मई में जब फैसला आया था तब भी कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। और आज भी बाकायदा ट्वीट कर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिषेक मनु सिंघवी एक सीनियर वकील भी हैं और इस लिहाज से वो बता रहे हैं कांग्रेस का तर्क यही है कि ये आम केस नहीं है। आम केस में जिस तरह की बातें होती है कि अगर आपने अपना के समय पूरा कर लिया तो उम्र कैद के लिहाज से आपको 14 साल के बाद आपको छोड़ दिया जाता है, राज्य सरकार के जो सिफारिश होती है उसके आधार पर छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस की दलील यही है कि ये देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी और उस लिहाज से उस मामले में आतंकवादी हमला इसको माना गया। तो वैसी स्थिति में इसको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। और उसमें कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ बीजेपी को भी इसमें लपेटती है, क्योंकि 2018 का मामला है जब ये मामला राज्य सरकार के पास गया था, राज्य सरकार ने सिफारिश की थी और उस समय तमिलनाडु में जिसकी सरकार थी AIADMK और बीजेपी के गठबंधन की सरकार मानी जाती है, वैसी स्थिति में बीजेपी पर आरोप भी लगता है और सुप्रीम कोर्ट के इस कहीं ना कहीं आदेश जो है उस पर भी कांग्रेस सवाल खड़ा करती है। ठीक है रवि, तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में काफी ये संवेदनशील मुद्दा है और AIADMK का जिक्र आपने किया। DMK जो है इस मामले को लेकर के उनके ऊपर तो तत्कालीन LTT से मिलीभगत के भी आरोप लगे थे और 1997-98 के दौरान तो सरकार तक गिर चुकी थी संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा की, माफ कीजिएगा, संयुक्त मोर्चा की। तो ऐसे में क्या जो DMK है वो इत्तेफाक रखेगी? कहीं ना कहीं सहयोगियों के बीच अलग राय नहीं दिखेगी? नहीं, बिल्कुल देखना ये जानना होगा कि
पहले केस में जो मई में फैसला आया था उसमें तो उस समय सरकार एआईएडीएमके की थी, लेकिन अभी ये जो 6 लोगों को रिहाई का मामला है, इसमें जो सिफारिश है ये क्या अभी की सरकार की है? अगर अभी के सरकार की है तो अभी डीएमके की सरकार है और कांग्रेस को समर्थन उसका है। और यही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तो उसके पहले दिन कन्याकुमारी में तमिलनाडु से यात्रा शुरू हुई, राहुल गांधी को जो फ्लैग ऑफ किया उस दिन आकर उनके हाथ में झंडा ठीक है। तो यहाँ DMK के राजनीतिक जो मुख्यमंत्री सहयोगी हैं उनकी भी राय अलग अलग नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बड़ी खबर पर जानकारी के लिए।